Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. So today we are going to start with the very first chapter of our book Beehive, English literature book, class ninth, lesson number 1, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. He was the writer of this chapter. Actually, the story, The Fun They Had, is set in future when books and schools as we have today perhaps will not exist. Two students of the period, which is about 150 years from today, find a printed book. Surprised as they are, they talk about the schools and books of the olden times. They compare those schools with that of their own, which are usually located inside their homes. Children, they have mechanical teachers to teach them. Now they are just comparing. They are just comparing those schools with that of their own, which are usually located inside their homes. So they had only mechanical teachers to teach them, but naturally they find their schools dull and boring because they do not have any type of classmate. They do not have any time for masti, for playing. That there would not be any recess in that they have to. They just enjoyed with each other. So nothing is to be there. So that's why they find their school dull and boring. They think that it would have been a great fun to study in the schools of the olden times when all the students went to a particular place to learn. They seem to be very excited by the fact that students of a particular age group used to learn the same thing and were taught by the human teacher. So Isaac Asimov's story presents the same idea that the future is not absurd at all. He brings out the theme that in the future most things will be done and regulated by computers and technology and all that. The writer also brings out the theme that the school is not as bad as the pupils always think. Asimov wants to show that there is a good system because we are in contact with other students. In the breaks, we can talk to each other and we have fun with them. ओके सो ही ओनली जस्ट वांट टू बी कंपेयर कि जो बच्चे हैं वो अब अगर उनके पास ये मैकेनिकल टीचर्स होंगे क्लासमेट्स नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे उनके पास कोई ब्रेक नहीं है वो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते उनके कोई क्लासमेट्स नहीं है ठीक है सारा दिन घर में एक चार दीवारी में एक रूम में बैठकर पढ़ना दैट दे फेल्ट वेरी डल एंड द बोर्ड ओके सो नाउ after completing the introduction, now we are going to start with that what is actually given. So before started, I would like to tell you about something about Isaac Asimov. So Isaac Asimov, who was the writer of this chapter, January 2, 1920 to April 6, 1992, was an American writer and professor of biochemistry at Worcester University. बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर थे अमेरिकन राइटर थे कहां पर बोस्टन यूनिवर्सिटी या सो चिल्ड्रन ही वाज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑफ साइंस फिक्शन एंड पॉपुलर साइंस वो मेनली जाने जाते थे अपने साइंटिफिक फिक्शंस के कामों में Asimov was a prolific writer who wrote or edited more than 500 books and an estimated 90,000 letters and postcards. उन्होंने एडिट किए हुए थे वो एक राइटर भी थे साइड बाय साइड वो अपना ये भी राइटिंग का काम भी करते थे एंड 500 बुक्स उनकी जो थी वो पब्लिश हुई थी एंड एस्टिमेट 90,000 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स वर एडिटेड बाय द सेम राइटर. His books have been published in 9 of the 10 major categories of the Dewey Decimal Classification. 10 में से 9 जो है उनकी मेजर कैटेगरीज की बुक्स थी जो पब्लिश हुई थी. Okay, so here we do have a photo by unknown author and he is the Isaac Asimov. I hope you will understand this. Okay, next.
The fun they had. The fun they had is a science fiction story by American writer Isaac Asimov. The fun they had is a science fiction story. ये एक साइंटिफिक फिक्शन की एक स्टोरी है by American writer Isaac Asimov. It first appeared in a children's newspaper in 1951 and was reprinted in February 1954 issue of the magazine of fantasy and science fiction. It first appeared, ये पहली बार देखा गया था in the children's newspaper, बच्चों की न्यूज़पेपर में 1951 में, और फिर इसको दोबारा फरवरी 1954 में इसको प्रिंट किया गया था मैगजीन ऑफ फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन के इशू में. It has been modified in a Finnish English book called KEY English 8th और 9th. इसको मॉडिफाई करके इंग्लिश बुक में कन्वर्ट किया गया था जो 8th और 9th ग्रेड की बुक की इंग्लिश थी. It delves into the difference in the education systems of the olden days and the virtual form of education with the use of mechanical teacher. In this story, the author wants to explain the difference between the education system कि पुराने टाइम में education system क्या था और आज का टाइम जो मैकेनिकल टीचर से है जो virtual classes का है. What is the difference between these two types of classes? Isaac is expressing his vision of the future of the technology. वो दिखाना चाहता है, वो अपना व्यू दिखाना चाहता है, अपना विजन दिखाना चाहता है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करेगी इन स्कूल्स ऑल्सो. The story we shall look to is set in the future, visualized by Isaac Asimov in 1951. The story, ये जो कहानी है, we shall look to is the set future visualized by Isaac Asimov in 1959. 51 उसने फ्यूचर को विजुअलाइज किया था अपने माइंड में. उसने फ्यूचर को अपने माइंड में सेट करते हुए इस स्टोरी में कुछ भी बताया है. By 2020, we are partially set in the kind of schools thought by him. Many number of schools present have a lot of access to virtual reality and virtual classroom. 2020 COVID time, we are partially set in the kind of schools. ऐसे स्कूल्स में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे देखे गए जो इस तरह के विचारों को उन्होंने अपने स्कूल्स में अप्लाई भी किया. मैनी नंबर ऑफ स्कूल्स जो थे उन्होंने प्रेजेंट किया, एक लॉट ऑफ एक्सेस दिया, इसी में वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल क्लासरूम बच्चों को प्रोवाइड कराया गया. When we are not supposed to go outside at the time of COVID-19, तो 2020 also schools presently उन्होंने प्रेजेंट किया, वर्चुअल रियलिटी दिखाई, वर्चुअल क्लासरूम्स बच्चों को दिखाए जहां पर वो अपने घर की सेफ एनवायरनमेंट में बैठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाए. Yes, computerized mechanism and internet has become a necessary reality for the present education system in schools and for students with usage of robotics. Computerized mechanism. अब कंप्यूटर का यूज करके मैकेनिकल और इंटरनेट से become a necessary reality for the present education system. वो आज की जरूरी रियलिटी बन चुकी है एजुकेशन सिस्टम की स्कूल्स में भी एंड स्टूडेंट्स के लिए विद द यूसेज ऑफ robotics का यूज करके. Here we do have some pictures. Smart board we are having, that is called our mechanical teacher, and here you have seen that students are sitting there and computer screen is to be visible so that they are virtual classes. Okay, and by the side at the right side Sophia humanoid robot, ये robot है. सो ये सब चीजें अब कोविड के टाइम पे लोगों ने फॉलो भी की हैं. नेक्स्ट, द फन दे हैड. नाउ कम बैक टू द स्टोरी about the characters. Firstly, we do have how many characters in that? First one, Maggie, a girl of 11 years. Tommy, a boy of 13 years who lives close to Margie. Then Margie's mother, disciplined person, जो हाँ मार्गी को बार बार रिमाइंड कराती है कि उसके क्लासेस का टाइम हो चुका है, सो शी हैव टू गो टू द क्लासरूम. ओके, देन कंटी इंस्पेक्टर,
a round little man who comes to repair the mechanical teacher of Margi. जो मार्गी के टीचर को रिपेयर करने के लिए आया था, गोलदार मुंह वाला छोटे से कद का एक इंस्पेक्टर जो आया था, he was the county inspector. So here we do have some points that is related to the fun they had. The story, the fun they had, depicts schools of future with virtual reality and virtual classrooms. ये जो story है, the fun they had depicts schools of future. वो दिखाती है स्कूल फ्यूचर में कैसे होंगे और वर्चुअल रियलिटी क्या है, वर्चुअल क्लासरूम्स जो है वो वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में, फ्यूचर स्कूल्स के बारे में इस स्टोरी में हमें एक्सप्लेन किया गया है. द राइटर सर इसाक एसिमोव tries to take us to the world of future where computers play a very major role. यहाँ के जो राइटर हैं सर इसाक एसिमोव, वो कोशिश कर रहे हैं टू टेक अस, हमें वहां ले जाने की, टू द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, भविष्य के संसार में जहां पर कंप्यूटर्स का एक बहुत मेजर रोल होने वाला है. Classrooms and the schools would be automated with robotic or mechanical teachers. Classrooms automatically चलेंगे स्कूल में, स्कूल में classrooms virtual चलेंगे with the help of robotic and mechanical teachers, with the help of smart classroom and with the having help the robotic. We do have a very soon we will have automatic classrooms in schools as well. The story depicts two students. ये कहानी दिखाती है उन दो विद्यार्थियों के बारे में. टॉमी एज 13, और टॉमी की एज 13 है, एंड मार्गी एज 11. मार्गी की एज क्या है? 11. लिविंग इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में रह रहे हैं, और बात है ये मई 2157 की. आई होप यू विल क्लियर नाउ. ओके, गुड. नेक्स्ट वन. Tommy gets a real printed old book from the attic in the house, which is about the schools of the past. टॉमी को एक रियल प्रिंटेड पुरानी सी एक पुस्तक मिलती है अपने घर की अटारी से, विच इज अबाउट जो पास्ट के स्कूल्स के बारे में पब्लिश की गई थी. Both the children in the lesson are seen comparing and contrasting between their school and the schools referred in the book. दोनों ही बच्चे जो इस लेसन में हैं वो कंपेयर कर रहे हैं और कंट्रास्ट कर रहे हैं किसके बीच में? एक तो वो स्कूल जिसका रेफरेंस बुक में दिया गया है, और एक वो स्कूल जो उनका खुद का है. मींस नॉर्मल क्लासरूम्स, नॉर्मल स्कूल्स, और वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल स्कूल्स. So they want to compare and contrasting between them. By the end, the children feel happy and show their interest to be a part of old kind of school. लास्ट में हम देखेंगे कि बच्चे बहुत खुश हैं कंपेयर करते हुए, वो कुछ बातें वो बता रहे हैं, कुछ वो बता रही है, एंड शो देयर इंटरेस्ट, और वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दैट दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी बिकम अ पार्ट ऑफ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि वो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स के बारे में. ही वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दैट. Before we peep into understand the story, let's question ourselves. इससे पहले कि हम इसकी स्टोरी में झांके, कुछ क्वेश्चंस थे. 3 things that you like about your school. Options are as follows. क्या कौन सी 3 चीजें हैं? It is a very common question that I just want to ask from each and everyone. 3 things you have to write that you like about your school. So these are your options: teachers, schoolmates, playground, activities, infrastructure, any other. So in comment, you may write your answers. I'm waiting for that. Next, 3 things about your school that you would like to change. The choice is yours. This is your choice. What you would like to change in the school, you have to write these 3 things. Next, would you like a real book or telebook? आपको क्या चाहिए? रियल बुक चाहिए? आप क्या पसंद है? रियल बुक पसंद है या टेली बुक पसंद है? Okay. Nextly, we do have explanations along with their meanings also, as well as if we do have any type of words
then we need to clarify the meanings as well by the right side. So paragraph number 1. Margie, age 13 years, makes a diary entry on 21st May 2157 that Tommy found a real book. मार्गी, जिसकी एज 13 ईयर्स की है, वो एक डायरी एंट्री कर रही है, अपनी डायरी में एंट्री कर रही है अंडर द डेटेड ऑन 21st May 2157 दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उसका टाइटल है कि टॉमी को आज एक वास्तविक बुक मिली है. द बुक वॉज वेरी ओल्ड. ये पुस्तक बहुत पुरानी थी. शी रिमेम्बर्स हर ग्रैंडफादर वंस टेलिंग दैट when he was a little boy, his grandfather had referred to a time when stories are printed on paper. ये बुक इतनी पुरानी थी, उसे याद आता है कि एक बार उसके दादाजी ने उसे बताया था कि जब वो एक छोटा सा बच्चा था, उसके जो ग्रैंडफादर थे ना, वो एक टाइम की बात बताया करते थे जहां पर, जब उस टाइम की बात बता रहे हैं जब स्टोरीज जो है ना, कहानियां प्रिंट होती थी पेपर्स पे. Margie and Tommy closely watched the book and found it was the old and pages were yellow and crinkly. मार्गी और टॉमी बहुत साथ में पास बैठकर, करीब बैठकर उस बुक को देखते हैं और वहां पे वो ये पता लगाते हैं कि ये बुक तो बहुत पुरानी थी एंड पेजेस, और जो उसके पेज थे वो येलो, पीले पड़ चुके थे, और क्रिंकली, मैनी फोल्ड्स और लाइंस, जिसमें बहुत, बोलते हैं ना, क्रिंक हो जाना, सिलवटें आ जाना, तो सिलवटें आ चुकी थी उन पेजेस पे, मोड़े हुए थे थोड़े से. It was a surprise to them to read words that stood still and the words being the same when they went to the previous page. वो बहुत सरप्राइज थे ऐसे वर्ड्स को देखकर जो अभी भी वहीं पर स्टिल खड़े हैं, और द वर्ड्स, और वही वर्ड वहीं पर ही है, अपने सेम पोजीशन पर ही है, जहां अगर हम उस पेज को पलटते भी थे ना, तब भी उनको वही सेम चीजें जो है वो वर्ड्स वहीं के वहीं दिखाई देते थे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, पैराग्राफ नंबर 2. बोथ टॉमी एंड मार्गी आर इन डिस्कशन. अब मार्गी और टॉमी डिस्कशन कर रहे थे. टॉमी कॉल्ड द बुक अ वेस्ट. टॉमी ने उस बुक को बोला कि तो वेस्ट है, एज इट कुड बी थ्रोन ऑफ वंस इट इज रीड. क्योंकि एक बार अगर इस बुक को फेंक दिया, एक बार इस बुक को पढ़ लिया, तो ये फेंकी जा सकती थी. In contrast, he was happy with million of telebooks in his television screen. इसकी कंपैरिजन में वो खुश था कि उसके पास तो टेली बुक्स हैं जो टेलीविजन में ऑलरेडी स्क्रीन पर फिट हैं, जिसमें एक साथ मिलियंस ऑफ टेली बुक्स इकट्ठी हैं, एंड ही वुडंट थ्रो इट, और उसे फेंका नहीं जा सकता. मार्गी ऑल्सो वॉज इक्वली हैप्पी विद हर मैकेनिकल टीचर विद मेनी टेली बुक्स. अब मार्गी भी इस बात पे खुश थी कि इससे तो हमारा मैकेनिकल टीचर है जिसमें बहुत सारे टेली बुक्स हैं. Margie wanted to know where had Tommy got the book and what was it about. अब मार्गी जानना चाहती थी कि टॉमी को ये बुक कहाँ से मिली थी और ये किसके बारे में थी. To this, Tommy answered that he found it in his house in the attic and it was about school. To this, इसके लिए टॉमी आंसर देता है कि उसे ये बुक उसके घर पर ही मिली थी, अटारी में, एंड इट वाज अबाउट स्कूल, और ये स्कूल के बारे में. एटिक क्या होता है बच्चे? अ स्पेस और रूम इनसाइड और पार्शियली इनसाइड द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. एक छोटा सा कमरा या पार्शियली इनसाइड, कमरे के अंदर का एक लाइक स्टोर रूम टाइप होता है ना, उसको बोला जाता है. नेक्स्ट, पैराग्राफ नंबर 3. Margie hated her school and her mechanical teacher. जो मार्गी थी वो अपने स्कूल से नफरत करती थी और साथ साथ मैकेनिकल टीचर से भी करती थी. Lately, she hated it more because her teacher was giving her lots of tests in geography. और कुछ टाइम के बाद वो अपने स्कूल से, अपने टीचर से और ज्यादा नफरत करने लग गई, क्योंकि वो उसको हमेशा टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो थे ना वो ज्योग्राफी सेक्टर के देते रहते थे. Wherein जिसमें she was doing worse and worse, वो बुरे से बुरा परफॉर्मेंस कर रही थी, and for which her mother also scolded her, और जिसके लिए हमेशा उसको अपनी मम्मा से डांट पड़ती थी, and called for the कंट्री इंस्पेक्टर, और उसके लिए एक बार कंट्री इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया. पैराग्राफ नंबर 4. कंट्री इंस्पेक्टर came
विद अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स। अब कंट्री इंस्पेक्टर आ गया, बहुत सारे बॉक्स में अपने टूल्स और डायल्स को लेकर आया, वायर्स को लेकर आया। ही स्माइल्ड एट मार्गी। अब वो मार्गी को देखकर स्माइल कर रहा था। Gave her an apple and took the mechanical teacher apart to repair. उसने एक एप्पल मार्गी को दिया, मैकेनिकल टीचर को अलग निकाल दिया रिपेयर करने के लिए। मार्गी डिड नॉट वांट इट टू बी रिपेयर्ड। मार्गी नहीं चाहती थी कि ये रिपेयर हो। Her wish was not fulfilled as he was good at it and repaired it in an hour. लेकिन ये इच्छा मार्गी की पूरी नहीं हुई क्योंकि जो कंट्री इंस्पेक्टर था वो इस काम में बहुत अच्छा था। उसने 1 घंटे लगभग में ही वो मैकेनिकल जो उसका डिपार्टमेंट था उसको रिपेयर कर दिया। शी हेटेड द स्कूल, द टीचर, सो शी कॉल्ड इट लार्ज, ब्लैक एंड अगली। वो उस मैकेनिकल टीचर जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर था ना, वो उससे नफरत करती थी, इसलिए वो बोलती थी उस स्क्रीन को कि ये बहुत बड़ी है, काली है और बदसूरत है। The teacher had a big screen where all the lessons were shown, of which again questions were asked. अब वही बिग स्क्रीन थी जहां पर लेसन्स दिखाए गए थे और वही सेम क्वेश्चन थे जो उससे पूछे जा रहे थे। नाउ दिस पार्ट वाज नॉट बैड फॉर मार्गी, लेकिन अब जो ये पार्ट दिखाई दे रहा था क्वेश्चंस का, ये मार्गी के लिए बैड नहीं था, बुरा नहीं था। शी हेटेड दैट स्लॉट। उसको वो स्पेस में ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो उस स्पेस से नफरत करती थी वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द पंच कोड सिस्टम। पंच कोड इज अ मेथड ऑफ गिविंग आंसर्स। उनको अपलोड करना होता था अपने होमवर्क को, टेस्ट पेपर्स को। स्लॉट उसको सबसे ज्यादा बुरा लगता था, उसको सबसे ज्यादा नफरत उससे थी जहां पर उसको मेथडोलॉजी का यूज करके अपने आंसर्स को जो पंच करना होता था, सबमिट कराना होता था, अपलोड करना होता था। शी लर्न एट द एज ऑफ 6 years। उसने ये पंच कोड 6 years की एज में याद किया था। द टीचर ऑल्सो कैलकुलेटिंग मार्क्स इन नो टाइम्स। वो जैसे ही स्लॉट में अपना टेस्ट पेपर एंटर करती थी तो टीचर बिना देर लगाए फटाफट उसके मार्क्स को कैलकुलेट कर लेते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 5। द कंट्री इंस्पेक्टर स्माइल्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड आफ्टर कंप्लीटेड। अब कंट्री इंस्पेक्टर मुस्कुराया और उसने उसका सिर थपथपाया कंप्लीट काम हो जाने के बाद। He explained to Margie's mother, Mrs. Jones, that Margie was not at all at fault as geography sector of her teacher geared too fast, which was above her level of understanding. कि इसमें मार्गी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था, उसका जो टीचर था ज्योग्राफी सेक्टर का, उसके लेवल को बहुत फास्ट किया गया था, किया हुआ था, वो फास्ट हो गया था। अब वो तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लेवल से बिल्कुल ऊपर था। एंड ही assured his mother, her mother, that he lowered its speed to an average 10-year level। कि अब उसने उसने अश्योरिटी दी उसकी मम्मा को कि अब उसने उसका लेवल 10 ईयर के स्टूडेंट की एज के आसपास उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग मैनेज कर दिया है। He patted her head again। उसने दोबारा उसके सिर को थपथपाया and told her that her performance was satisfactory। और उन्हें बताया कि इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। Further, Margie wanted her teacher to be taken back। Altogether, Tommy's teacher were taken away for a month as the history sector blanked out totally। अब मार्गी भी यही सेम चाहती थी कि उसका जो टीचर है ना वो ठीक ना हो, क्योंकि एक बार ऐसा टॉमी के टीचर के साथ भी हुआ था। उसको तो 1 मंथ के लिए लेकर गए थे रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्टर कंप्लीट ब्लैंक्ड आउट हो चुका था, कंप्लीट डिलीट हो चुका था। She did not like school, so she wondered why would anyone write about school। इसलिए वो स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा वंडर थी, बहुत ज्यादा हैरान थी कि कैसे कोई स्कूल के बारे में कुछ लिख सकता है। टॉमी कॉल्ड हर स्टूपिड। टॉमी उसको स्टूपिड बुलाता था, बेवकूफ बुलाता था। एंड एक्सप्लेन हर दैट इट वाज नॉट देयर काइंड ऑफ स्कूल। वो उसको कहता है कि बेवकूफ, यहाँ पर पुराने टाइप के स्कूल के बारे में एक्सप्लेन किया गया है जो बहुत ही सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करता था। शी वॉज हर्ट एंड वाइल शी वॉज ट्राइंग टू रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर एक्सप्रेस दैट दे मस्ट हैव हैड अ टीचर। उसको वो दुख हुआ ये जानकर,
जब उसने बुक को अपने शोल्डर के पास रखा, उसके शोल्डर के पास देखते हुए जब उस किताब को पढ़ने की कोशिश की, और जब उसको पता चला ना कि उनके पास टीचर्स होते थे, तो वो बहुत हर्ट हुई। टॉमी आंसर्ड दैट दे डिड नॉट हैव अ रेगुलर टीचर but a man who told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions to which Margie was surprised. टॉमी ने बताया कि उनके जो टीचर्स थे वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो आते थे क्लासरूम में, बॉयज और गर्ल्स को कुछ बताते थे, समझाते थे, उनको होमवर्क देते थे और नेक्स्ट डे उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। तो मार्गी बहुत सरप्राइज हो गई कि ऐसा भी होता है। Now, according to paragraph number 7, Margie did not approve of a man being smart enough to be a teacher, to which Tommy contradicted and betted. Margie did not approve of a man. अब उसको इस बात से बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं हो रही थी कि एक आदमी, एक इंसान बीइंग स्मार्ट इनफ टू बी अ टीचर, कि वो इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो एक टीचर बने। टू विच टॉमी कॉन्ट्राडिक्टेड एंड बेटेड, जिसके लिए उसने टॉमी से बेटेड शर्त लगाई। ही हैड पुट हिज फादर एज एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग नॉलेजेबल। यहाँ पर टॉमी ने उसको एग्जाम्पल दिया अपने फादर का कि मेरे फादर बहुत नॉलेजेबल है। मार्गी डिड नॉट डिस्प्यूट, उसने उसके साथ कोई बहस नहीं की, एंड वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट, लेकिन वो इस बात को समझने में सहमत भी नहीं थी कि एक स्ट्रेंज मैन इन हर हाउस टू टीच हर, कि कैसे कोई एक्सेप्ट कर सकता है एक अनजान आदमी को अपने घर बुला के पढ़ाने के लिए। To this, Tommy laughed and explained that the school was a special building. कि टीचर घर आके नहीं पढ़ाता था. There was a special building named as school. वहां पर एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जिसको हम स्कूल के नाम से जानते थे. And all the kids of the same age went there, learned, and same thing. And teachers did not live in the house. वो घरों में नहीं आके रहते थे. वो एक स्पेशल काइंड ऑफ बिल्डिंग जिसको हम स्कूल बोलते हैं, वहां पर जाते थे, सभी बच्चे वहां पर आते थे और एक जैसे चीजों को सीखते थे अकॉर्डिंग टू देयर लेवल। यस, नाउ पैराग्राफ नंबर 8, मार्गी dispute this by saying that her mother was of the idea that a teacher should be adjusted to fit the mind of every boy and girl. मार्गी ने इस बात पर बहस करते हुए कहा कि मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि टीचर को तो हर एक बच्चे के, हर एक लड़के और लड़की के दिमाग के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करना होता है, एंड दैट ईच चाइल्ड शुड बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को तो अलग अलग पढ़ाना ही पड़ता है उनके मेंटेलिटी, उनके माइंड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। देन टॉमी बिकेम एंग्री, अब टॉमी को बहुत गुस्सा आ गया, एंड टोल्ड हर नॉट टू रीड द बुक इफ शी डिडंट एक्सेप्ट। उसने कहा कि तुम अब इस बुक को मत पढ़ना अगर तुम्हें मेरी बात को पे विश्वास ही नहीं करना है। She tried to please him that she wanted to know about these funny schools. She wanted to please her. अब वो उसको समझाने की, उससे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, अभी वो और इसके बारे में जानना चाहती है। She wanted to know something. वो जानना चाहती है इसके बारे में अभी भी। Then, meanwhile, Margie's mother called Margie as it was school. It was time for school and for Tommy also. अभी वो बात कर ही रहे होते हैं, इतने में उसकी मम्मा जो है वो उसको आवाज लगाती है कि अब आपके ये स्कूल का जो है वो टाइम हो चुका है, और ये टाइम टॉमी के स्कूल का भी है। Now Margie requested Tommy about reading the book after school. अब मार्गी ने रिक्वेस्ट की टॉमी से कि अब वो उस बुक को पढ़ना चाहती है आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में। नेक्स्ट, पैराग्राफ नंबर 9, Tommy did not show much interest in her request and walked away bristling and tucked the dusty bald book beneath his arms. टॉमी ने उसकी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसकी रिक्वेस्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, चुप करते हुए, पैर घिसाते हुए, टक करते हुए उसने अपनी बाजू के नीचे उस डस्टी बुक को रखा और वहां से चलता बना। मार्गी वेंट टू हर स्कूल रूम विच वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब अपने स्कूल रूम में पहुंच गई जो उसके बेडरूम से बिल्कुल नेक्स्ट था। वेयर हर मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जहां पर मैकेनिकल टीचर थे और उसका इंतजार कर रहे थे। वाज ऑलवेज ऑन द टाइम एट द सेम टाइम एवरी डे, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइम पे रोज
बिल्कुल टाइम पर वो होते हैं मौजूद वहां पर। हर मदर हैड द ओपिनियन दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर रेगुलरली, कि छोटी लड़कियां तभी अच्छे से सीख सकती है जब वो रेगुलर उस चीज को सीखे। सैटरडे एंड संडे वर हॉलीडेज फॉर स्कूल, फ्रॉम स्कूल से 2 डेज का ऑफ होता था। द स्क्रीन वॉज ऑन विद अर्थमेटिक लेसन ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब स्क्रीन पे अर्थमेटिक का अंगगणित का एक लेसन चल रहा था जहां पर प्रॉपर फ्रैक्शंस को एडिशन करने की बात दिखाई गई थी। नाउ पैराग्राफ नंबर 10। मार्गी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द लेसन एंड साइट। अब मार्गी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उस लेसन में और वो बहुत अनविलिंगनेस फील कर रही थी कि वो पढ़ना नहीं चाहती। She was thinking of old kind of school where all kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. अब वो सोच रही थी उन ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स के बारे में जहां पर सभी पड़ोस के बच्चे मिलकर, सभी किड्स मिलकर हंसते हैं, शाउटिंग करते हैं स्कूल के आंगन में, एक साथ बैठते हैं। They learned the same thing so that they could help each other in doing homework. वो एक जैसी चीजों को सीखते हैं जिसकी वजह से दे कुड हेल्प ईच अदर इन डूइंग होमवर्क, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं होमवर्क करने में। दे ऑल्सो वेंट होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के खत्म होने पर वो एक साथ घर जाते थे। द टीचर्स वर पीपल, अध्यापक जो है वो रोबोट्स नहीं होते हैं, वो मैकेनिकल टीचर नहीं होते हैं, वो नॉर्मल इंसान होते हैं, पीपल होते हैं। When the mechanical teacher of Margie was flashing information about friction, she was thinking about the fun the kids of the old school had. अब जब उसका मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था इंफॉर्मेशन अबाउट फ्रिक्शन, जो उसका कंसेप्ट चल रहा था अर्थमेटिक का, तब वो सोच रही थी अबाउट दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स एंड ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। Now we do have some questions from the book. How old are Margie and Tommy? Margie is 11 and Tommy is 13 years old. What did Margie write in her diary? The Tommy found a real book. Had Margie ever seen a book before? क्या उनसे इससे पहले उन्होंने कभी बुक देखी थी? No. They were very surprised when they saw an old and yellow and crinkly paper book. So no, Margie had never seen a book before. What things about the book did she find strange? The pages of the book were yellow and crinkly, and it was more funny than that the words were still and did not move. ये बहुत फनी थी क्योंकि जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल स्टिल थे और वहां से बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। What do you think a telebook is? Telebook is an e-book or virtual book whose text automatically moved in the computer or mechanical teachers. As depicted in the lesson, it can be read on the screen. जो स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर के थ्रू, जो कंप्यूटर के थ्रू जो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मूव होता रहता है, उसको हम ई बुक बोलते हैं या वर्चुअल बुक बोलते हैं या टेली बुक बोलते हैं। नेक्स्ट इज मार्गी वॉज, where was Margie's school? Did she find any? Did she have any classmate? Margie's school was just next to her bedroom, and no, she did not have any classmates. अब कौन से सब्जेक्ट्स की बात हुई थी वहां पर? मार्गी और टॉमी ने कौन से सब्जेक्ट्स लर्न किए थे? एक ज्योग्राफी सेक्टर की बात हुई थी, एक हिस्ट्री की, एक अर्थमेटिक की। नाउ सेकंड पार्ट, देयर इज अ स्टेटमेंट, आई वुडंट थ्रो इट अवे। हु सेज these words? These words are said by Tommy. What does it refer to? It refers to the telebook. What is it being compared with the speaker? किसके साथ कंपेयर किया गया है? टेली बुक का कंपेयर किया गया है ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। ये किसने कहा था कि उनके पास टीचर तो होते हैं लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता, वो इंसान होते हैं। ऑफ कोर्स दे रेफर्स टू द चिल्ड्रन ऑफ ओल्ड स्कूल। यहाँ पर दे का मतलब है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के चिल्ड्रन। And regular means regularity of Margie and Tommy's mechanical teachers. वो रेगुलर नहीं होते थे, तो यहाँ पे रेगुलर कौन है? जो मैकेनिकल टीचर्स हैं। What is it contrasted with? यहाँ पर कंट्रास्ट किसका किया है? ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को मैकेनिकल टीचर के साथ कंट्रास्ट किया गया है। नाउ नेक्स्ट वन, what kind of teachers did Margie and Tommy have? किस तरह के टीचर थे? मैकेनिकल टीचर्स जो उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे,
The mechanical teacher were always ready with a big screen. एक बहुत बड़ी स्क्रीन के साथ हमेशा रेडी रहते थे जिस पर लेसन्स जो हैं वो प्रिंट हुए होते थे, क्वेश्चंस अपने आप वहां पर पूछे जाते थे, एंड देयर वुड बी अ स्लॉट in which they have to or they would submit their homework and test papers. एक स्लॉट होता था जहां पर उनको रूटीन का होमवर्क और टेस्ट पेपर्स को अपलोड करना होता था. या नेक्स्ट वन. Why did Margie's mother send for the country inspector? मार्गी की मदर ने उसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास क्यों भेजा था, क्यों बुलाया गया था कंट्री इंस्पेक्टर को? मार्गी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स इन ज्योग्राफी टेस्ट, क्योंकि उसकी पोजीशन, उसकी सिचुएशन ज्योग्राफी टेस्ट में वर्स से वर्स होती जा रही थी. सो मार्गीज मदर हैड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर इन ऑर्डर टू चेक द मैकेनिकल टीचर एंड द परफॉर्मेंस ऑफ मार्गी. इसलिए कंट्री इंस्पेक्टर को भेजा गया, बुलाया गया चेक करने के लिए कि मैकेनिकल टीचर में या मार्गी की परफॉर्मेंस में कहां पर क्या प्रॉब्लम है, जांचने के लिए मार्गी की परफॉर्मेंस को और मैकेनिकल टीचर के लेवल को. What did he do? The country inspector ने क्या किया? The country inspector took the mechanical teacher apart to repair it. पहले उसने उसको अलग किया रिपेयर करने के लिए. He slowed the geography section of a 10-year level. और उसने geography section को 10 साल की एज के लेवल के अकॉर्डिंग स्लो डाउन किया. Then he assembled the mechanical teacher back again. और दोबारा से उस mechanical teacher को उस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया. Why was Margie doing badly in geography? क्या प्रॉब्लम थी? That the level of geography geared a little too quick. लेवल बहुत ज्यादा हाई था, which was above her level of understanding, जो उसकी समझ से ऊपर था. The country inspector repaired the mechanical teacher and set the geography section to an average 10-year level. अब country inspector को बुलाया गया, उसने रिपेयर किया उसको और अब उसके geography section को उसने 10 ईयर के लेवल पे सेट कर दिया. I hope you will understand these points. What had once happened to Tommy's teacher? Tommy के टीचर के साथ क्या हुआ? Tommy's mechanical teacher was taken away for a month because his history sector was completely blanked out. क्योंकि उसका हिस्ट्री का सेक्टर बिल्कुल था, इसलिए उसके टीचर को एक मंथ के लिए लेकर गए थे. Did Margie have regular classes in schools for school? क्या उसके पास रेगुलर क्लासेस और आवर्स हैं स्कूल के लिए? Yes, Margie certainly had regular schools and hours. She attended her class every day at the same time, except सैटरडे और संडे को छोड़कर रेगुलर वो सभी दिन क्लासेस को अटेंड करती है. Her mother ensured his because little girl learned better in the regular classes. क्योंकि उसकी मदर उसको बार-बार इंश्योरिटी देती है कि अगर बेटर परफॉर्मेंस देनी है, बेटर रिजल्ट देना है, then she should be attended regular classes. Now about old kind of school. Tommy said that the old school existed centuries ago. कुछ centuries पहले हुआ करते थे. The old school used paper books instead of telebooks. वो पेपर से बनी बुक्स का यूज करते थे instead of using telebooks. They were being taught by a man. उनको आदमी, उनको जो इंसान है वो टीचर्स हैं जो उनको टीच करते हैं. All students went to the same building where the teacher told the students things, gave them homework and asked them questions. वहां पर जो बच्चे होते हैं वो एक ही बिल्डिंग में जाते हैं जहां पर टीचर्स जो है बच्चों को होमवर्क देती है, उनको समझाती है और उनसे क्वेश्चंस पूछती हैं. द किड्स केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द क्लासरूम, स्कूल रूम. इकट्ठे हंसते खेलते हैं, सेट टुगेदर, एक साथ बैठते हैं, एंड हेल्प ईच अदर इन डूइंग होमवर्क, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं होमवर्क करने में. घर भी एक साथ एट द एंड वापस जाते हैं. How does Tommy describe the old kind of teachers? वो मैन होते हैं, they taught at the special building. स्पेशल बिल्डिंग उनको मिली होती है. The man told the kids things, gave them homework. उनको होमवर्क देते हैं, उनको चीजें समझाते हैं, and then ask the question if the students understood or not. और completely तब तक समझाते हैं जब तक स्टूडेंट जो है वो completely उस बात को समझ ना ले. Now here we do have some long questions. What are the main features of mechanical teacher and school rooms that you can add from your book only? And why did Margie hate school?
क्यों नफरत करती थी, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का था और उसको हमेशा टेस्ट आफ्टर टेस्ट देने पड़ते थे। अभी उसकी तैयारी जो उसकी प्रिपरेशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो उसके लेवल के थे ही नहीं। ठीक है, तो उसको लगता था कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ज्योग्राफी सेक्टर जो है वो बहुत खराब होता जा रहा है। तो इसलिए उसने क्या किया, वो बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी। एंड व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? और कौन सी चीजें थी जिनको देखकर उसको लगा कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल जो थे ना वो ज्यादा बेनिफिशियल थे। तो शी थॉट दैट देयर मस्ट बी लॉट ऑफ फन। उसे लगता था कि पहले के टाइम के स्कूल्स में बहुत ज्यादा फन होता था। दैट्स व्हाई शी थॉट द सेम। Do you agree with Margie that school today are so fun that the school given in the story? According to your own way, this is a value-based question. That what do you understand about the school? कि फन किस में ज्यादा है, आज के स्कूल्स में या जो पहले स्कूल्स जो पास्ट में होंगे उन स्कूल्स का, और जो फ्यूचर में स्कूल्स होंगे उनका कंपैरिजन। Now we do have some extra questions. These are complete workbook, worksheet. So you can write down these questions properly and solve it. Okay. इसी के साथ thank you. Have a nice day.